Good morning, student. Hope you understand the unit 1 very well. Now we are going to start unit 2. Under unit 2, we will discuss the various theories of entrepreneurship, what exactly entrepreneurship is, the environment, barrier and strategies of entrepreneurship, creativity innovation, and entrepreneurship development programs. Well, in the previous lecture, we learned the concept of entrepreneur, social entrepreneur, and woman entrepreneur. A very integral to this concept is the concept of entrepreneurship. Then, obvious the question arises in your mind: what exactly entrepreneurship and how entrepreneurship evolved or developed in India, and what role does entrepreneurship play in its industrial economic development of your country? Basically, the concept of entrepreneurship, the entrepreneurship is an important factor of industrial development in a country. क्योंकि अगर entrepreneurship नहीं तो industrial development possible नहीं है. ठीक है. Basically it is the primary trait of an entrepreneur, and you can say the degree and the quality of entrepreneurship is different from entrepreneur to entrepreneur. अलग अलग एंटरप्रेन्योर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग तरीके से, कितना आप क्वालिफाई करो, कितने आगे तक आप जा रहे हो. आप देखते होगे कि क्या दो एंटरप्रेन्योर सेम होते हैं? नो, इट इज़ बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन देयर ट्रेड्स, देयर क्वालिटीज एंड ऑल. Entrepreneurship is a multi-dimensional task defined differently by the different authors. We cannot summarize it into one or two lines क्योंकि हर किसी के लिए entrepreneurship की definition अलग है. And some of them view it as a risk bearing, and other call it as a innovation, yet another consider as a thrill seeking exercise. So entrepreneurship view by a different person in a different point of view. Okay. In the conference of entrepreneurship held in USA, entrepreneurship is defined as entrepreneurship is the attempt to create a value through recognition of business opportunity. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. You are creating value by identifying the business opportunity. You are managing the risk. ठीक है. आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है प्रॉपरली टेक केयर कर रहे हैं, उस रिस्क को मैनेज कर रहे हैं. यू आर कम्युनिकेटिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने बाकी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, ताकि आप अपना जो कंक्लूजन है या जो आपका फ्रूट है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, यू कैन एबल टू अचीव इट. दैट इज़ कॉल्ड योर entrepreneurship. Clear? Basically, entrepreneurship is essentially a creative activity. It's a creative activity and it consists of doing such a thing as are not generally done in ordinary course of business. It means entrepreneurship में आप क्या कर रहे हो? कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश करते हो जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है. अब माना आपने एक शॉप खोली और किराना स्टोर आपने खोला और आपने उसमें काम करने लगे, तो दैट इज़ नॉट ओरिजिनली, इट इज़ नॉट कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप नीड सम इनोवेशन. अगर आपने उसमें कुछ इनोवेट किया है, कुछ नया आप लेके आए हैं, तब हम कहेंगे कि दैट इज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप. अदरवाइज यू आर नॉर्मली अ बिजनेसमैन. And in according to Peter Drucker, entrepreneurship is neither a science nor a art. It is a practice. ओके. यहाँ पर ना प्योर साइंस लग रही है ना आर्ट लग रही है. इट इज़ टोटल अ प्रैक्टिस. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी. इट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, विलिंगनेस टू थिंक कॉन्सेप्चुअली एंड रेडी टू टेक रिस्क. मीन्स जब आप कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको कुछ आप अर्न करने की भी कोशिश करते हैं, दैन इट इज़ कंसिडर एज अ एंटरप्रेन्योरशिप. जैसे माना आपने देखा शादी.com है. शादी तो पहले भी होती थी, पंडित जी आते थे, कराते थे, बट जब शादी.com खुला, हम ये कहेंगे दैट इज़ अ एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज उसने कुछ अलग हटके किया. दे क्रिएट अ क्रिएटिविटी. उसे इमेजिनेशन थी कि भाई लोग कैसे मिलेंगे. ठीक है. तो क्रिएटिविटी थी, उसने ऑनलाइन उसे करने की कोशिश करी.
अब जैसे आपने देखा लॉकडाउन लगा, तो इट इज़ अ क्रिएटिविटी की इमेजिन किया, आपने आइडिया का ऐड देखा होगा कि दे इमेजिन 2 or 3 year बैक कि दूर दराज में जो लोग हैं वो कैसे पढ़ेंगे, बाय फ़ोन, क्योंकि टीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो हम उससे फ़ोन से बुला सकते, पढ़ा सकते उन्हें, और किस तरह से पढ़ाएंगे। तो वो एक आइडिया था जो हुआ, जिसको कॉमर्शलाइज अब किया गया। लोगों को समझ में आया कि अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं बुला पा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं बुला पा रहे, तो हम उनके पास जा रहे हैं उनको पढ़ाने विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। आपने देखा कि हम आपके जूम लेक्चर्स नहीं ले रहे, वाई? बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्टिविटी इशू। तो एक नया प्लेटफॉर्म मिला यूट्यूब, कि आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको लगेगा, जब आपके पास इंटरनेट आएगा, एट दैट टाइम यू कैन डाउनलोड, यू कैन सी, यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब आप कोई चीज़ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ आप इमेजिन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको जिसका मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम रियलाइज करी, जैसे माना रेड बस है, उसमें भी यही हुआ कि भाई ऑनलाइन बुकिंग ऑफ बस कैसे शुरू हुआ, या ओला कैब कैसे शुरू हुई, व्हेन द ओनर फील प्रॉब्लम। उन्होंने देखा कि मुझे रात को टैक्सी नहीं मिल रही है, आई फील अ प्रॉब्लम, तब मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सॉल्यूशन ढूंढना, एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना, एक इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करना और उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना, रेडी रहना उसको कॉमर्शलाइज करने के लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, आप परसेप्शन है आपका, अपॉर्चुनिटी मीन्स आप परसीव तो कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तब आपको पता चलता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप उसको एक इंडस्ट्रियल यूनिट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यू आर सेटिंग अप द बिजनेस फॉर दैट, एंड you are running that industrial unit as a profitable and going concern. So this is all about your entrepreneurship. Entrepreneur क्या है? Is a person who initiate all these things. Entrepreneurship is a process of action. वो person जो action कर रहा है, जो process वो कर रहा है, that is called entrepreneurship. And enterprise is the outcome of that person process. Means it's the object. Clear? Basically, entrepreneurship is the function of इंटरप्रेन्योर। जब बहुत इंटरप्रेन्योर जब काम कर रहा है, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर मिलके जो कुछ करते हैं, तो उसका जो फंक्शन है, कंबाइन जो इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ अ प्रोसेस। इंटरप्रेन्योरशिप इज अ interreaction of skill related to inner control, planning, goal setting, risk taking, innovation, reality perception, use of the feedback, decision making, human relation, independency, means everything comes under this. means जहाँ आपने कोई प्रॉब्लम देखी, आपके अंदर अपनी स्किल्स थी, यू इंटरेक्ट विद योर स्किल्स, यू प्लान, यू हैव सेट द गोल, आपने रिस्क लेने की हिम्मत रखी, उसके लिए रियलिटी को परसीव किया। यहाँ आप बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ये नहीं कि आपने इमेजिन किया और आप काम करने लगे, नो, आप वही रिस्क लेते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होने के जो है चांसेस हों। ठीक है, तो रियलिटी को देखकर मीन्स बहुत रियलिस्टिक होके आप जो है कोई डिसीजन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप देख रहे हैं यहाँ पर, द ट्राइंगल, द पर्सन हु इनिशिएट द थिंग, द टास्क जो वो काम कर रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट मीन्स इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर, then it is called entrepreneurship, which is affected by the environment also। क्योंकि आप सोसाइटी में हैं, आपको जो इन्वायरमेंट में जहाँ आप रह रहे हैं वो भी इफेक्ट कर रहा है। आपका कौन सा टास्क होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी, किसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, वो इन्वायरमेंट बता रहा है आपको। रिसोर्सेज कौन दे रहा है, इन्वायरमेंट दे रहा है। अपॉर्चुनिटी कौन क्रिएट कर रहा है, द इन्वायरमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट्स मीन्स आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से उसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड अ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो 3 component of entrepreneurship are the person, the task and the organization। Clear? तो entrepreneurship and creativity results from interrelationship of these 3 elements।
जब ये 3 एलिमेंट मिलेंगे तब एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, क्रिएटिविटी आपकी आती है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, द पर्सन who is generating the idea, clear, who implement it, आपका स्किल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मोटिवेशनल लेवल, ये सब काउंट होता है। देन द टास्क, जो ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन करेगा, किस चीज़ को आप अचीव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यू विल गोइंग टू शेप द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपका इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है उसमें। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, कि आपने उसको, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपका एंटरप्रेन्योर वर्क है कि क्या रोल कौन प्ले करेगा, कैसे प्ले करेगा, किस तरह का स्ट्रक्चर आप रखेंगे, हाउ यू आर रिलेट द थिंग्स, किसके बाद क्या होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में आती। तो ऑल दिस कंबाइनली मेक द एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ what exactly the relationship between entrepreneur and entrepreneurship? Basically, the term entrepreneur is often used interchangeably with the entrepreneurship, but there is a conceptually there is certain difference. Like, entrepreneur is just a person, but entrepreneurship is the process. Entrepreneur is the organizer, but entrepreneurship is the organization. Means entrepreneur क्या है, person है, innovator है, he is a risk bearer जो ये risk ले रहा है, he is a motivator who motivate, he is a creator of the thing, he visualize the thing कि क्या कर सकता हूँ मैं in the mind, he is a creator, he is a and he is a leader who is a imitator also, जो चीज़ों को लेके आ रहा है, बट वो किस तरीके से लेके आएगा, वो प्रोसेस से लेके आएगा जो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है, आपने इनोवेटर हैं, आपने इनोवेशन किया, बट इनोवेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है जब आप उसे करेंगे। रिस्क बियरिंग आप कर रहे हैं, मोटिवेशन है, आप दिखा रहे हैं उस चीज़ को काम करके कि ऐसा होगा। यू आर अ क्रिएशन, you are a vision that entrepreneur want to achieve, you are leading the thing, you are imitating the thing. Okay, so entrepreneurship is a result of the efforts of the entrepreneur, जो entrepreneur ने efforts लगाए उसका result क्या है, entrepreneurship है, उसकी process है। Clear? Now in next class we will going to discuss the characteristic of entrepreneurship. Hope you understand the concept of entrepreneur very well now. If you have any doubt, please call me. Thank you, students.